Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th and 10th science. And you know that in the previous class we have started from the acids and we have discussed there what are indicators, what is the use of indicators, and there we have also started what are acids and we have discussed some properties of acids. Today we are moving ahead. We are going to discuss wholly and solely the acids, their properties, their definition, and their behavior that we are going to discuss in this class. You know that in the previous class we have discussed indicators, and indicators are the chemical substances which are used to detect which chemical substances are acids, which chemical substances are bases, and which chemical substances are neutral substances. And in that very class, we have also discussed the types of indicators based on the origin, based on the source. That indicators are of two types: natural indicators and synthetic indicators. And also, we discussed that on the basis of color and odor, we discussed that there are also two types of indicators, that coloring indicators are those indicators whose color gets changed upon interacting with acids and bases. After that we also discussed the olfactory indicators whose whose um, smell odor gets changed while coming in contact with acids and bases, that we have discussed there. And basically there we discussed three main types of acids. One was litmus indicator. Litmus indicator can be in the solid form, that too in the paper form, and it can be also present in the solution form. And there we also discussed the synthetic indicators, that is phenolphthalein and methyl orange. That all we have discussed in that very class. And we have started from the properties of acids. And while discussing the properties of acids, I told you that you know that acid word, first property that we discussed, that you know that acid word is derived from the Latin word means acidus. Acidus means sour in taste. So first property of acids is that they are they are sour in taste. This is the first property of acids. And the second property of the acids is that and they dissolve in water. ये पानी में हल हो जाते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स की। आपको ये याद रखना है, आगे जाके आपको ये काम आएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो एसिड्स होते हैं ये हाईली करोसिव इन नेचर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करोसिव। दे आर हाईली corrosive in nature. What does it mean, corrosive in nature? Corrosive in nature means that these acids, while when any substance come in contact with the acids, whether it is a living organism, whether it is a non-living organism, चाहे वो मार्बल क्यों ना हो, चाहे वो हमारे क्लॉथ्स क्यों ना हो, चाहे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई बॉडी क्यों ना हो, कोई सेल क्यों ना हो, ये उसको क्या कर रहा है, ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर सपोज हमारे स्किन पे पड़ जाएगा, ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएगा ये एसिड, ये उस पर बर्निंग सेंसेशन भी करता है और उसको बर्न भी करता है, इवन दो कि ये होल्स भी करता है। इतना खतरनाक होता है ये एसिड, ये छेद भी कर सकता है, ये पूरे जिस्म को जला सकता है, पूरे कपड़े को ये जला सकता है। इवन दो ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी नहीं
खिंचता है। सपोज अगर ये मार्बल पे भी गिर जाएगा उसको भी ये डिस्ट्रक्ट करता है, उसको भी ये करोड़ करता है, मेटल्स को भी ये करोड़ करता है। इतना खतरनाक होता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है। कौन? एसिड। दैट इज व्हाट it means that they are highly corrosive in nature. Later I will explain it. That means they cause burning sensation on skin. इसका मतलब क्या है? That is IE. That is they cause या they produce. आपकी मर्जी, आप क्या लिखोगे? They produce burning sensation on skin and also destroy both living and non-living things. सपोज ये स्टोन्स को भी अटैक करता है, ये मार्बल को भी अटैक करता है, ये मेटल्स को भी करोड़ करता है, मेटल्स को जंग लगती है। करोड्स मेटल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा करोड्स मेटल्स। कौन? ये एसिड का काम है। दैट इज व्हाट इट मीन दैट दे आर हाईली करोसिव इन नेचर। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। कौन? एसिड्स। ये याद रखना है आपको। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जब भी ये एसिड जब हम देखते हैं, ये स्ट्रांग भी हो सकता है, ये वीक भी हो सकता है। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको स्ट्रांग एसिड किसको कहते हैं और वीक एसिड किसको कहते हैं। तो दैट मीन्स और एक प्रॉपर्टी ये भी है, दे आर, दैट मीन्स ये स्ट्रांग भी है और वीक भी है। दे आर बोथ स्ट्रांग as well as weak in nature. That means हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी है और वीक एसिड्स भी है। वो मैं बताऊंगा आगे जाके स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। सपोज अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सपोज वीक एसिड, वीक एसिड की बात जब हम करते हैं तो इसमें सारे ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें आते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल दिखवाई है आपको। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, सपोज इसमें फॉर्मिक एसिड, इथेनॉइक एसिड जिसको हम एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये सब इसमें आते हैं, या लैक्टिक एसिड वगैरह सारे इसमें आते हैं। वीक एसिड इसमें आते हैं और इसमें H2CO3 भी आता है, कार्बनिक एसिड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। पांचवी जो प्रॉपर्टी है, तो ये क्या कर रहे हैं, शाबाश। और एक प्रॉपर्टी है, जब एसिड्स बेसिस के साथ मिलते हैं, तो ये जब भी कोई एसिड बेस के साथ मिलता है तो उस टाइम दो नए कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, दो नए मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इनके इस कंबाइन होने को वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ कंबाइन होती है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो वहाँ पे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है जिसमें क्या कोई नया चीज़ बन जाए, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं वाटर और सॉल्ट बन जाता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज व्हेन एसिड combines with basic solution, salt and water is formed। वाटर इज फॉर्मड, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे।
and is known as neutralization reaction and is known as neutralization reaction न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दैट मीन्स जब भी आप एसिड और बेस को आपस में मिलाओगे तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे साल्ट और वाटर बन जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह और एक प्रॉपर्टी जो मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस की थी, जब भी ये, आई होप आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके काम आएगा। तो मैं यहाँ पे रब करता हूँ। और एक प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी आपको कि जब भी हम एसिड में क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर, तो वो रेड लिटमस पेपर में तब्दील हो जाता है या वो रेड लिटमस सॉल्यूशन में तब्दील हो जाता है। तो ये है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन लिटमस सॉल्यूशन। इसी तरह मैंने बताया था आपको मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, उसका अपना कलर है ऑरेंज, जब एसिड में डालते तो रेड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। या फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ क्या हो जाता है, जब हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालते हैं किसमें, या एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, फिनोप्थलीन इंडिकेटर, तो वहाँ पे क्या होता है, कलरलेस ये वो रह जाता है। दैट मीन्स नो चेंज, कोई फिनोप्थलीन इंडिकेटर में कोई चेंज नहीं आती है। मगर अगर उसी फिनोप्थलीन इंडिकेटर को किस में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में, तो पिंक कलर हो जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या और एक प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी, एसिड्स